Hello everyone, this is lecture 3. So in the previous video we study about why C programming is so important, why it is important for students and history of C language, and then we study about what is computer, then we study about what is language. Language is a medium to communicate to computer, and computer understand only 0 and 1, and to interact with the computer we must know the computer language. Then we study about machine language and assembly language, drawbacks of machine language. The drawback of assembly language and machine language is the main important drawback is these both languages are processor dependent language. Processor dependent language means if we make a program on AMD processor, if we make a program on AMD processor, it does not work on Intel processor. It work only on an AMD processor. If we make a program on Intel processor, it works only on Intel processor. It does not works on AMD processor. So this is the major drawback of assembly language and machine language. Then we study about third generations. Languages are categorized into two categories, low and high, where we study about low level languages. Low level languages are machine language, assembly language. Then these COBOL, basic, Fortran, alcol are high level languages. But the drawback of high level languages, we can make only they are target based, as we study that they are target oriented languages, because they COBOL language only make the programs of business oriented. It does not make the program of formula transaction. So this is the major drawback of high level language. Then we study about C language. It's a mid level language. Then what is C programming? This C is a programming language that is developing for creating system software and application apps. Then C is a mother language. C is also known as these all names. And history of C language, Dennis Ritchie, the founder of C language. Then C is widely used language and its features are simple, machine independent or portable. Machine independent and portable means if we make a program on AMD processor, then it means it will work on Intel processor also. It is rich library. It means we have 4 GB of space, 3 GB is used, and automatically 3 GB will be released by the computer. It means C has rich library. And these all about C languages features. Now let's come to the lecture 3. In today lecture we are going to make our first program. So let's start it. So in the today lecture we are going to make a program. How to make a program? First we need a task and then tool to use. What is our task? Our task is write the C program. Write the C program. What we have to write? What tool we have to use? We have to text editor, means we have to type. Then we can write the C program. After typing, our next task is compile the program. How we can compile the program? We compile the program by using the ALT F9. Then run the program and runtime environment. Run the program runtime environment means run, आप प्रोग्राम को रन कीजिए, देन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, दैट्स कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट. और जो ब्लैक 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 आता है आउटपुट जिसमें लिखा आता है पूरे ब्लैक हो जाता है, वो आपका जो ओएस है विंडोज उसकी वजह से आता है. तो इसलिए अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. जो सी प्रोग्रामिंग है उसका रन टाइम इन्वायरमेंट ओएस प्रोवाइड करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ एक तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट इट. एडिटर एंड कंपाइलर आर गिवन बंडल्ड इन वन सॉफ्टवेयर. जो एडिटर और कंपाइलर होता है ये एक ही सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होते हैं. उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आईडीई. आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आईडीई मतलब जिस पर हम अपना सी प्रोग्राम टाइप करेंगे, जैसे कि टर्बो सी, ब्लॉक कोड, कोड ब्लॉक, क्लोड ब्लॉक आईडी, देव C++, ये सारे क्या है? ये आईडी हैं. ये
एडिटर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक बंडल बन के जो सॉफ्टवेयर बना है, एडिटर और कंपाइलर का जो बंडल बन के एक सॉफ्टवेयर बना है उसको हम बोलते हैं आईडी। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल टर्बो सी, देव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक आईडी। नोट, फॉर सी प्रोग्रामिंग रन टाइम एनवायरनमेंट जो होता है वो ओएस प्रोवाइड करता है। मतलब जब हम प्रोग्राम लिख दिया, हमने प्रोग्राम लिख दिया, सपोज हम एक साथ आपको कर करके दिखाते जाएंगे, ये भी हम बताएंगे अभी। तो यस, हर एक चीज़ फटाफट फटाफट स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी हैव टाइप। पहले हम टाइप कर रहे हैं तो आप ये मत पूछना कि ये चीज़ यहाँ से कहाँ से आ गई, ये स्टूडियो कहाँ से आ गया। तो इसके लिए बस आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, आप सब समझ जाएंगे ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। बिकॉज इसी वीडियो में हम बताएंगे कि इस हैश का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी टाइप। अभी हम ये भी बताएंगे कि ये वॉइड मेन कहाँ से आया, ठीक है, और ये प्रिंटफ क्या होता है ये भी बताएंगे इसकी आज की वीडियो में। इसी वीडियो में हम ये सब आपको बताएंगे। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, नाउ गेट सी एच, ये भी बताएंगे कि गेट सी एच क्या होता है, ये क्यों आता है, ये हमने सेमी कोलन क्यों लगाया, हम ये तक बताएंगे। और ये हमने ब्रेसेस बंद कर दिए, ये भी बताएंगे। सो ये देखिए मैंने ALT F9 प्रेस किया तो देखिए ये कंपाइल हो गया, लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। पर आपने ऊपर देखा है लिखा रहा है सी, तो हमें सी मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं है, इट मीन्स हमें स्क्रीन भी क्लियर करनी है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं CLR डबल कोट्स एंड देन सेमी कॉलन। अब आप देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा गया, सिंपल स्क्रीन क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने आपको बताया था जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो OS प्रोवाइड करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन देख रही है ये क्या है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब काली 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 जो स्क्रीन आ रही है ये आपको सी प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये आपको ओएस, आपका ओएस जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मेरा है विंडोज 10 है मेरे में, तो ये मेरा जो ओएस है विंडोज ये प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्लैक 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 स्क्रीन ये प्रोवाइड नहीं करता। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने वही पेजेस पे चलते हैं। सेव कर लिया हमने अपना प्रोग्राम। नाउ कम टू सो हमने क्या बताया था, जो ये होता है सी प्रोग्राम का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है वो ओएस प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट, अब आईडी क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है कम्प्रीहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि अभी हम अलमारी में कुछ कपड़े रखते हैं, तो कपड़े की छोड़िए, आप लंच लेके जाते हैं तो लंच में सेक्शन बने होते हैं ना, कि अचार का है, यहाँ पे स्पून्स रखी जाएंगी, यहाँ पे रोटी आएगी, यहाँ पे सब्जी आएगी। तो यही बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पर है, यहाँ पर सबके सेक्शन बने हुए हैं, इसी को हम आईडी बोलते हैं। दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रीहेंसिव फैसिलिटीज। कॉम्प्रीहेंसिव फैसिलिटीज मीन्स इसका अलग है, जैसे कि जो अभी हम बताएंगे अभी आपको प्रिंटफ वगैरह के बारे में, तो जो प्रिंटफ है वो केवल यही कर सकता है, स्टूडियो ही ले सकता है। तो इट मीन्स सब चीज़ सबको अपनी अपनी चीज़ें दे रखी है कि ये आपका है, ये आपका है। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें करता है आईडी प्रोवाइड, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और ये किसको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स मतलब हमको, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और आईडी नॉर्मली कंसिस्ट क्या करता है, सोर्स कोड एडिटर होता है उसमें, बिल्ट ऑटोमेटिशियन टूल्स होते हैं एंड डीबगर। डीबगर क्या होता है, आपको डीबगर के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये हमने लिखा था, सपोज मैंने यहाँ से गेट सी एच हटा दिया, ठीक है, मतलब ये गेट सी एच ही मैंने रिमूव कर दिया, मैंने को ये लिखना ही नहीं है। चलो अब देखते हैं, लिखा हमने ALT F9 दबाया, उसको CTRL,
So it is showing an error. पर उसमें हमने रन कराया तो उसमें कोई एरर नहीं दिखाया। पर सपोज पर जब हम रन करा रहे हैं तब ये देखिए रन नहीं हो रहा, इट मीन्स इसमें एरर है। तो ये इसकी वजह से रन नहीं होगा। सपोज यहाँ हम, मुझे आपको डीबगर सिखाना है ना, मैं डीबगर सिखाऊं। सपोज मैंने यहाँ से ये करली ब्रेसेस हटा दिए, ओके। नाउ वी विल रन आवर प्रोग्राम। So it is showing error 1. Here it is written error compound statement missing this. So इस error को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीबगर। इसको क्या बोलते हैं हम, डीबगर। ये जो दिखा रहा है ना एरर मैसेज शो जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डीबगर। ठीक है, तो हमने वापस से चलते हैं अपनी उस फाइल्स पर। यस हियर, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आईडी होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज, किसको, हमको, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आईडी नॉर्मली क्या कंसिस्ट करता है, देखिए उसमें सोर्स कोड एडिटर होता है। सोर्स कोड एडिटर में जो हम लिखते हैं कोड, बिल्ड ऑटोमेटिशन टूल्स होते हैं उसमें, जैसे कि हमने रन करा दिया, ये टूल्स होते हैं सारे ऑटोमेटिशन। और डीबगर होता है, डीबगर मतलब एरर दिखाना। अभी हम कोई भी गलती करते हैं तो तुरंत एरर दिखा देगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब आईडी की वजह से होता है, ये सब आईडी ही कर रहा है। आईडी कंसिस्ट करता है ये सब चीजें, सोर्स कोड एडिटर, बिल्ड ऑटोमेटिशन टूल्स एंड अ डीबगर। ये देव, सीपीपी, टर्बो सी, विजुअल स्टूडियो, इस पर हम अपना सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। नेटबीन्स, इक्लिप्स, कोड ब्लॉक्स या सम एग्जांपल्स ऑफ सम पॉपुलर आईडी। ये आईडी के एग्जांपल है, क्योंकि आईडी मतलब जिस पर अपना सी प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बोसी। टर्बोसी हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, आपको जो जिस जिसको टर्बोसी चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका जिप फाइल भेज दूंगी, आप सब लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वे आर वी, आईडी। तो हमने आईडी के बारे में पढ़ा था कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, मतलब अस, और फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसमें क्या क्या होता है, सोर्स कोड एडिटर होता है, ऑटोमेटिशन टूल्स होते हैं और डीबगर होता है। इसके एग्जाम मतलब कि हम किस पर वर्क करते हैं, जैसे कि टर्बोसी हुआ, विजुअल स्टूडियो हुआ, इक्लिप्स हुआ, और बहुत कोड ब्लॉक्स हुआ, सारे क्या है पॉपुलर आईडीज हैं, तो इस पर हम करते हैं। और आप नेक्स्ट था इंस्टॉलेशन ऑफ आईडी। टर्बो सी जो है, मेरे पास टर्बो सी है, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में जिप फाइल सेंड कर दूंगी, तो आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम सेव कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम को, हम सेव एस पे क्लिक करते हैं और ये सेव हो जाता है हमारा प्रोग्राम। आप फाइल पे जाएंगे, सेव एस पे क्लिक करेंगे, मतलब टर्बो सी की फाइल पर, तो सेव हो जाएगा। नाउ कॉमनली यूज कमांड फॉर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, मतलब कि कंपाइल जब भी हम कराते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वैसे तो कंपाइल बटन से हो जाएगा कंपाइल, पर नहीं, हमें बेसिकली जो यूज़ होते हैं बटन्स जिससे कि फास्ट टाइपिंग हो, तो वो होता है ALT F9, जिससे कंपाइल होता है, और CTRL F9 से रन होता है। पहले हम रन कराते हैं, रन करा के हमें मिस्टेक्स पता चल जाती हैं, अगर कोई एरर होता है तो कोई एरर दिखा देगा, और अगर एरर नहीं होता तो एरर नहीं दिखाता। जब एरर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, इट मीन्स नाउ यू कैन कंपाइल। जब अगर एरर है तो आप उस एरर को ठीक करें, तभी आप कंपाइल करें। तो पहले हमें क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, या फिर मतलब रन कराना है CTRL F9 से अपने प्रोग्राम को, देन हमें कंपाइल कराना है ALT F9 से। नाउ कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर यूज्ड फॉर बेटर रीडेबिलिटी, इट इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, सो हमें कमेंट्स पढ़ना है, सब आप सब लोग यहीं देखें। जैसे कि कमेंट्स एक वो चीज होती है जो कंप्यूटर जो होता है वो उस चीज को रीड नहीं करता, जो कंपाइलर होता है वो उसे रीड नहीं करता है, वो उसको छोड़ देता है। और कमेंट्स कैसे लिखा जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके बाद लिख दिया,
ये क्या है, ये कमेंट है, ये ब्लू 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 हो गया, ये इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मतलब आप इसे एक ही लाइन में लिख सकते हो। एक लाइन में देखिए मैं इसे कितना बड़ा भी लिख दूं, कुछ भी मैं लिख दूं, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, एक ही लाइन में, और मैंने फिर ये लगा दिया, तो ये कमेंट हो गया है। आप सब लोग देख सकते हैं। मैं अपना, अब देखिए हम फिर से रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को। ओके गाइस, तो हम पहले ये से कंप्लीट कर देते हैं। हमने डीबगर के लिए एरर समझाने के लिए मैंने यहाँ से एंड वाला करली ब्रेसेस हटा दिया था। सो मैंने इसे रन करना है। सी पहले तो हमें रन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जीक्यूट हो गया, इसका आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा कमेंट्स से। कमेंट्स वो चीज़ होती है जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, मतलब हमें समझ में ज़्यादा आ जाए। जैसे कि हमने ये तो मैंने ये लिख दिया, नहीं तो कमेंट्स में हम ये लिखते हैं कि ये लाइंस कैसी आई हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि सपोज आपको तो खुद जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों लिख रहे हैं कमेंट्स का, हम लिख रहे हैं जैसे कि अभी मैंने लिखा कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो मुझको तो ये पता है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है। क्या दूसरे जने को पता है ये मेरा पहला प्रोग्राम है? नहीं पता। तो उसके लिए हमें लिखा है कि जब भी कोई दूसरा पढ़े तो उसे पता चल जाए। जैसे कि CLR SCR है, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो मुझे तो ये पता है, अब दूसरे को पता है या नहीं पता, तो हम इसमें कमेंट्स का यूज करते हैं। ये होता है क्लियर स्क्रीन के लिए यूज। तो जैसे ही दूसरा खोलेगा तो पता चल जाएगी कि हाँ इसका ये पहला प्रोग्राम है, ये क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है। और ये आप कमेंट्स कहीं भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऊपर वाली लाइन में लिख लो, इसे हटा दो, यहाँ पर हमने कमेंट्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, ये जो अपना कंपाइलर है ये इस चीज को रीड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हम अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं। अपनी सहूलियत का मतलब हम हमारे ज़्यादा समझ में आ जाए, मतलब हमारे समझ में आए, अपने समझने के लिए हम ये सब चीज़ें लिखते हैं। इसको हम कमेंट्स बोलते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है डबल लाइन। देखिए मैंने सब लिख दिया, आप लोगों को समझ में आ गया कि हेलो फ्रेंड्स ये मेरा इनका पहला प्रोग्राम है। और CLR SCR जो क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो हम नए कंपाइल कराते हैं। तो इसका कंपाइल क्या आएगा? इसका आएगा हेलो वर्ल्ड, जो पहले आया था। आएगा नहीं आएगा? आप देखें, ये मैंने रन कराया, उसमें दिखा दिया, देखिए रन कराए तो नो एरर लिखा आ गया। अब हम कंपाइल कराते हैं तो इसमें लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। आ गया फ्रेंड्स लिखा। तो ये क्या है? ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। ये तो है हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो ब्लैक 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 है, ये कौन प्रोवाइड करता है? OS प्रोवाइड करता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स है ये। हेलो फ्रेंड्स दिस इज माई प्रोग्राम। सो क्लियर स्क्रीन के लिए CLR यूज होता है। मैंने आपको बताया आप रन और कंपाइल बटन से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज से, या फिर ये रन और कंपाइल का देखिए ये रहे ऑप्शंस, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। पर फास्ट टाइपिंग के लिए ज़्यादातर सब लोग शॉर्ट कीज का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो ये था सिंगल लाइन कमेंट्स। एक होते हैं डबल लाइन कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पढ़ना है अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। कमेंट्स क्या होते हैं? जो बेटर रीडेबिलिटी के लिए, हमें ज़्यादा समझ में आए, अपनी बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम इसको कमेंट्स लिखते हैं। और ये कंपाइलर जो होता है ये सब चीज़ों को इग्नोर करता है। जो हम कमेंट्स में लिखते हैं उसे कंपाइलर इग्नोर करता है। कमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? दो कैटेगरीज के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया था। हम ये दो हैश का यूज़ करते हैं, फिर कमेंट लिखते हैं अपना, और फिर दो बंद कर देते हैं। दिस इज कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि इंक्लूड की लाइन के ऊपर आपने क्यों लिख दिया, कहीं पर भी लिखो, ये कंपाइलर से इग्नोर करेगा। आप कहीं पर भी लिखते हो। और सिंबल क्या यूज होता है? ये देखिए स्टार्टिंग में और एंड में ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब जो मल्टी लाइन कमेंट होता है वो क्या होता है? ये आप कहीं पर भी लिख सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप ये कहीं नहीं लिख सकते, आप इसको भी कहीं पर भी लिख सकते हो। मल्टी लाइन का मतलब क्या होता है? मल्टी लाइन का मतलब एक से ज्यादा लाइन है, नहीं है दोस्तों? मल्टी लाइन का मतलब होता है एक से ज्यादा लाइन। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, पहले हम लगाते हैं हैश और फिर हम लगाते हैं स्टार, ठीक है। अभी मैं जितना लिखना है मैंने इसमें सब लिखती जाऊंगी।
हेलो लगाए, नीचे लिख दिया मैंने ये मल्टी लाइन मतलब ज़्यादा लाइन मैंने फ्रेंड्स पे लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया दिस लिखा है। अगली लाइन में लिखना है मैंने इज माई सो मैंने ये लिख दिया मल्टी लाइन। फिर मुझे स्टार एंड देन सो इसका मतलब क्या हो गया, पहले आपने देखा था ये सब भी ब्लू ब्लू हो गया था, इट मीन्स कंपाइलर इसको भी रीड नहीं कर रहा था। अब इतनी चीज को कंपाइलर रीड नहीं करेगा। मल्टी लाइन का मतलब कि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह घेर ली। सिंगल लाइन मतलब वो एक ही लाइन में लिखा जा सकता था। मल्टी लाइन में आपको कुछ बड़ा कमेंट लिखना है तो हम इस चीज का यूज करते हैं। सपोज मैं इस चीज को हटा के ना मैंने ये यहाँ पे लगा देना है स्टार और हैश। अब देखिए ये सब रहा मल्टी लाइन कमेंट में हो गया। ये यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट प्रोग्राम CLR SCR ये सब मल्टी लाइन कमेंट में हो गया। अब मैंने रन करना है तो इसमें ढेर एरर आने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। एरर आ गया कि कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग दिस। अब इसे हम लगा देंगे तो हम फिर केवल कुछ प्रिंट तो होगा नहीं। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करा दिया था, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था, है कि नहीं? तो अब मैंने इसे हटा देना है और उधर ही जगह लगा देना है माय फर्स्ट प्रोग्राम की जगह। तो ये देखिए वो सब आ गया और ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। और अब देखिए मैं फिर आपको रन करके दिखा दूं। अच्छा हमने वो हटा दिया था ना डीबगिंग के लिए, जब मैंने डीबगिंग समझाया था आपको तो मैंने ये ब्रेसेस हटा दिया था। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, नहीं आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। होप आप सबके समझ में आ गया होगा ये। सो वापस अपनी फाइल्स पर चलते हैं। सो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ये भी हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते। स्टार्ट किससे होता है, हैश और स्टार, इससे स्टार्ट होता है। फिर एंड कब होता है, स्टार और हैश। आप लोगों ने भी देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में लगाया था हैश और स्टार और एंड में लगाया था स्टार और हैश। ये सिंबल्स रिटन बिटवीन, जैसे कि स्टार्टिंग में लग जाएगा ये एनी सिंबल, कोई चीज भी सिंबल 1 2 3 हम कुछ भी इन दोनों के अंदर लिखते हैं वो इग्नोर करता है कंपाइलर। इट कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीपल लाइन्स, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन का मतलब वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। जो मल्टी लाइन होता है ये हम ज़्यादा लाइन में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन वाला एक ही लाइन में लिखा जाता है, मल्टी लाइन ज़्यादा लाइन में लिखेंगे। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कंपाइलर इग्नोर करता है। उन दोनों में अंतर यही है कि ये मल्टीपल लाइन में लिखा जा सकता है, वो सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, बस। बाकी और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब सेम है। आप इन दोनों के अंदर जो भी लिखोगे वो कंपाइलर इग्नोर करेगा, चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए चाहे आप वो हैश, दोनों हैश यूज़ कर लीजिए। ओके, होप आपके कमेंट समझ में आया होगा। नाउ ये होता है लिखने का तरीका। जैसे कि हमने स्टूडियो लिखा वॉइड में, ये हम सभी बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, ये हर चीज़ बताएंगे आपको। प्रिंट एफ हेलो, ये देखिए यहाँ लिखा, मैंने लिखा यहाँ मल्टी, अगली लाइन में लिखा लाइन, अगली में लिखा कमेंट, ये बंद कर दिया। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आई है यहाँ से लेके ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन लाइन वाली, ये कमेंट वाली पूरी लाइन, इसके अंदर जो भी चीज़ आया है कंपाइलर इसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इग्नोर मारेगा, इसको देखेगा ही नहीं, वो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा प्रिंट एफ बाय। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हैश इंक्लूड क्या होता है। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे ये हम हैश इंक्लूड क्यों लिखा हमने। सो कम टू दिस, देखिए हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड दिस स्टूडियो डॉट एच दिस। अब हम हर एक वर्ड का मतलब बताएंगे। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिव मतलब सबसे पहले प्रोसेस करने वाला, प्री मतलब पहले, प्रोसेस करने वाला डायरेक्टिव मतलब सबसे पहले। डायरेक्टर का काम क्या होता है, काम डायरेक्टर जो होता है इसमें बॉलीवुड में, उसका काम क्या होता है, सबको बताना, मतलब निर्देश देना, सबको एक सेकंड बताना कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस ये क्या है, डायरेक्टिव, इसका काम भी यही होता है, सबको बताना कि तुम ये नहीं ये करो, तुम ये नहीं ये करो। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव सबको बताना, प्री प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेस करके अपना काम बताना कि तुम्हारा ये है तुम्हारा ये है, सबको अपना अपना काम बताना।
इंक्लूड क्या होता है? प्री प्रोसेसर कमांड, जो सबसे पहले कमांड जो चली जाती है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब इसे इंक्लूड मतलब अपने अंदर लो, इसको लो अपने अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है? प्री प्रोसेसिव कमांड, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिव कमांड। और फिर होता है ये स्टीडियो, STDIO, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जिस चीज के आगे भी लग जाए, आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, उसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। हेयर डॉट एच मीन्स हेडर फाइल, डॉट एच जिस चीज के आगे भी लग जाता है उसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। नाउ कम टू पावर पॉइंट। सो hash include, hash is a pre-processive directive, include is a pre-processive command। इसको include को बोलते हैं pre-processive command, hash को बोलते हैं pre-processive directive। pre-processive directive is used to provide the direction instruction to the compiler before processing। pre-processive directive जो होता है hash, वो इसलिए यूज किया जाता है to provide the direction दे और instruction दे कि तुम्हारा काम ये है और तुम इस डायरेक्शन में जाओ। टू द कंपाइलर को बोले कि इसका काम ये, इसका काम ये है। बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने से पहले वो कंपाइलर को उसके काम बताता है, ये आपका डायरेक्शन आप इस डायरेक्शन में आपका काम ये है, आपका ये है, ये सब काम जो बताता है वो हैश बताता है, जिसका मतलब प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। इंक्लूड एक कमांड है जो दी जाती है सबसे पहले। इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल, हेडर फाइल इसका मतलब क्या था? हमने क्या लिखा था वहाँ? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का मतलब इंक्लूड इस चीज को इंक्लूड कर लो अपने अंदर। प्री प्रोसेसिव कमांड मतलब प्रोसेस करने से पहले जो कमांड चली जाती है, यहाँ पे प्रोसेस करने से पहले जो कमांड चली गई थी वो थी इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब स्टूडियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल जो है, डॉट एच मतलब हेडर फाइल, इसको अपने अंदर इंक्लूड कर लो। प्री प्रोसेसिव कमांड मतलब स्टूडियो डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर अपने अंदर इंक्लूड कर लो। प्रोसेस करने से पहले जो कमांड चली गई है वो है इंक्लूड, तो इसको अपने अंदर इंक्लूड कर लो। इसका मतलब ये था प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इज यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन। हैश जो होता है वो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ये काम करिए कंपाइलर को, और जो इंक्लूड होता है वो कमांड देता है कि आपको, प्री प्रोसेसिव कमांड बोलते हैं इंक्लूड को प्री प्रोसेसिव कमांड। इसका मतलब ये कमांड दिए कि आप इस हेडर फाइल को अपने अंदर ले लें, टू इंक्लूड द हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट, आप सबके समझ में आया होगा ये। अगला है हमारा हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी दैट हैज ऑल द कनेक्शन ऑफ सो मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड वी इंक्लूड द हेडर फाइल विद अ प्रोग्राम सो दैट द फंक्शन फ्रॉम दोज हेडर फाइल कैन बी यूज्ड। सपोज फ्रेंड्स, अब मुझे आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाना है, मतलब ये हेडर फाइल होती क्या है। देखिए, ये प्रोग्राम था मेरा जो मैंने लिखा था, आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम था। ये क्या थी? स्टूडियो डॉट एच, ये कोनियो डॉट एच, ये क्या होती है? हेडर फाइल होती हैं। हेडर फाइल का काम होता है जो फंक्शन होता है उसको अपने अंदर ले लेने का, जैसे कि SCR को, प्रिंट एफ को, सबके पास अपने अपने बटे हुए हैं, मतलब आईडी के थ्रू से। आईडी क्या बताया था मैंने? सबको अपना अपना दे रखा है। तो स्टूडियो तुम्हें केवल ये 2 ही फंक्शन लेने हैं, कोनियो तुम्हें केवल ये वाला फंक्शन लेना है। तो ये ऐसे फंक्शन बटे हुए। ये अब आपको मुझे शो करना है बेसिकली होता क्या। देखिए बाप, जैसे कि सब लोग अपने दिस पीसी में जाना, दिस पीसी में जाओगे आप सब, तो आपके ज़्यादातर सबके विंडोज सी में होता है टर्बो सी, अब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, डाउनलोड कर लेना। तो सर टर्बो सी पर आना, फिर आपको यहाँ दिख रहा है इंक्लूड, टर्बो सी पर आके इंक्लूड पर जाना। तो इंक्लूड में जाके ये जो इतनी सारी आई हैं, ये पता है क्या है? ये सारी हेडर फाइल्स हैं। ये आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी हेडर फाइल्स हैं। ये जो सारी हैं देखिए, ये सारी हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको होप स्टूडियो भी दिख गई होगी, जो कि ये रही स्टूडियो। स्टूडियो पे हम क्लिक करते हैं। चलिए, ये विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ये फाइल खोल ली है, ठीक है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में खोली है। तो देखिए, ये रही फाइल। तो इसमें देखिए, ये देखिए इसने लिख रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक का लगा दिया है। ये हमें समझाने के लिए कि देखिए कॉपीराइट है 1987 में, पर ये मल्टी लाइन कमेंट्स में इसने लिखा है जिससे कि हमारे समझ में ना आए, ठीक है। तो जैसे कि हम आ गए, ये किन्होंने लिखा है? ये ने लिखा है जो सी के डेवलपर है। तो हम आ गए यहाँ पर आप सबको देखो दिख जाएगा।
देखिए यहाँ पे दिख रहा है गेट CHR, PUT CHR, ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये सब फंक्शंस हैं जो कि studio.h अपने अंदर कंटेन करता है। ये सारे क्या है फंक्शंस जो studio.h अपने अंदर कंटेन रखता है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ गेट CH दिख गया, ठीक है, और यहाँ पे जो सारे फंक्शंस ये अपने अंदर कंटेन करता है वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है printf, scanf, दिख रहा है printf, scanf, जो ये सारे फंक्शन होते हैं scanf, printf, ये जो होता है स्टूडियो का काम होता है इन सबको अपने अंदर रखने का। जैसे कि दिख रहा है आपको, देखिए printf, ये printf दिखा आप सबको, PUTS, ये सारे फंक्शन होते हैं। जो studio.h है क्या, एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का काम होता है इतने सारे फंक्शन अपने अंदर स्टोर करने का। ये इतने सारे फंक्शन तो केवल स्टूडियो कंटेन कर रही है, बाकी कोनियो ये सब तो और फंक्शन स्टोर कर रही है। तो इसका मतलब इन सारी हेडर फाइल्स का काम होता है अपने अंदर फंक्शन स्टोर करना, ठीक है। हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी होती है दैट हैज द कलेक्शन ऑफ सो मैनी, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, नहीं बोलते। ये सब चीजें क्या होती है, प्री डिफाइंड फंक्शन। एंड वी इंक्लूड द हेडर फाइल विद द प्रोग्राम सो दैट द फंक्शन फ्रॉम दोज हेडर फाइल कैन बी यूज। हम उस हेडर फाइल के अंदर, स्टूडियो के अंदर हम उस फंक्शन को क्यों लाए, जिससे कि वो यूज हो सके। हेडर फाइल के अंदर हमारा काम होता है फंक्शन को लाना जिससे कि वो फर्दर यूज हो चुके। जिसे भी हमें यूज करना है, जैसे कि हम math.h फंक्शन यूज करते हैं। math.h का काम होता है जैसे कि हम मैथ का कोई भी वो लिखते हैं, स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखते हैं तो वो math.h के अंदर लिखा जाता है। तो math.h क्या है, फंक्शन है ये। math.h एक हेडर फाइल है, math.h ये एक हेडर फाइल है। इसमें जो फंक्शन यूज होता है, तो math.h का काम क्या होता है, उस फंक्शन को अपने अंदर लेना और उस पर उसे फर्दर यूज करना। सो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। हेडर फाइल के अंदर कलेक्शन, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे देखिएगा इतनी सारी हेडर फाइल है। देखिए आपको math.h भी दिख गई, देखिए मैथ, ये सारी क्या है, ये सारी हेडर फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और फंक्शंस का काम क्या होता है, अपने हेडर फाइल का काम क्या होता है, फंक्शंस को लेना और आगे यूज करना प्रोग्राम में, ठीक है। सो हम आते हैं अगली स्लाइड। अगली में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी द फंक्शंस आर पुट इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। मतलब जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फंक्शंस क्या होते हैं, printf, scanf, इन सबको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो ये अलग अलग हेडर फाइल में डाले जाते हैं, ये नहीं कि एक ही में सारे फंक्शंस डाल दिए, अलग अलग हेडर फाइल में डाले जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक ही में क्यों नहीं डाले जाते। अब आप बताइए, जैसे कि अलमारी होती है, अलमारी में कपड़े रखे होते हैं, हम ऐसा करें सारे कपड़े लेके ऐसे घुसेड़ दें उसमें, तो क्या आप निकाल पाएंगे, सुबह आपको जब जरूरत होगी कपड़ों की, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए वहाँ सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं कि यहाँ पर पैंट रखी जाएगी, यहाँ पर शर्ट्स, नीचे शूज, तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे वहाँ पर। तो इजीली हम निकाल लेते हैं, इजीली यूज हो जाता है, नहीं हो जाता। तो ये फॉर हमारी बेटर प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए, तो फंक्शनैलिटी जो होती है वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट हेडर फाइल में ही डाले जाते हैं, अलग अलग हेडर फाइल में, एक ही में सारे हेड नहीं डाले जाते, नहीं तो सब मिक्स मैक्स हो जाएगा और हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बेटर नहीं हो पाएंगी। तो ये हमें किस लिए जाते हैं, जिससे कि डिफरेंट हेडर फाइल्स में डाले जा सकते हैं, कि सारे फंक्शंस अलग अलग हेडर फाइल में डाले जा सकते हैं। जैसे कि studio.h है, ये एक हेडर फाइल है। इसका मतलब स्टूडियो का मैंने आपको क्या बताया था अभी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन होता है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसमें क्या क्या, printf, scanf, ये जो फंक्शन होते हैं ये स्टूडियो में ही आपको मिलेंगे। एक्सेट्रा मतलब इसमें और भी फंक्शन है, मैंने आपको स्टूडियो में आप खोलिएगा, इंक्लूड में जाके स्टूडियो से सारे कोई सा भी हेडर फाइल खोलेंगे, आपको दिख जाएंगे वहाँ पर फंक्शंस, और आप क्लिक कर देंगे उसमें सारे फंक्शंस निकल आएंगे कि आप कौन कौन से इसमें यूज होते हैं। जैसे कि स्टूडियो में यूज होता है printf, scanf, ये और भी होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है 2 का। तो स्टूडियो क्या है, स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये हेडर फाइल है studio.h लगा, इसका मतलब ये एक हेडर फाइल है जो कंटेन करती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। और इसके एग्जांपल्स क्या, कौन कौन से फंक्शन कंटेन करती है, printf और scanf। मैंने अभी बताया था डिफरेंट हेडर फाइल अलग अलग फंक्शंस को अपने पास रखती हैं। स्टूडियो अपने पास प्रिंट और scanf को रखती है। कोनियो वो अपने CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन, CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन को अपने पास रखती है। कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसको हम बोलते हैं कोनियो। कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल का मतलब होता है खाली,
मतलब वो जो ब्लैक एक्सप्रेस ब्लैक 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 दिखा था ना, जब हमने आउटपुट किया था तो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। जो ओएस प्रोवाइड करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट, जो ब्लैक ब्लैक था, वो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, खाली इनपुट आउटपुट। तो एक हेडर फाइल होती है conio डॉट एच, हेडर फाइल बहुत होती है, मैंने आपको दिखाया था उसमें। और इस हेडर फाइल में कौन कौन से होते हैं, इसमें CLR SCR होता है और गेट CH होता है, और भी बहुत होते हैं, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। conio डॉट एच में कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ये। और ये conio डॉट एच लगा है तो मतलब क्या है, ये हेडर फाइल है। conio मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल CLR, CLSCR, क्लियर स्क्रीन और गेट CH, ये conio के अंदर होते हैं। फिर ये स्ट्रिंग के लिए यूज कौन सी होती है, स्ट्रिंग डॉट एच। मैथ के लिए मैंने अभी आपको बताया था मैथ डॉट एच यूज होती है। ये क्या है, डॉट एच, ये सारी हेडर फाइल है। जब भी आपको मैथ का कोई सा भी वो लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो आप मैथ डॉट एच वो यूज करेंगे हेडर फाइल, तभी वो उस फंक्शन को अपने अंदर स्टोर करेगी और यूज कराएगी। मेमोरी मतलब मेलॉक डॉट एच, मेमोरी की जो होती है वो मेलॉक डॉट एच होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की होती है stdlib डॉट एच। ऐसे बहुत होती हैं, आप सब लोग देख सकते हैं उसमें। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि वाई वी हैव सो मैनी हेडर फाइल्स, इतनी सारी हेडर फाइल्स क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होती। एक ही होती तो बढ़िया रहता ना, एक ही के फंक्शन होते, एक ही फंक्शन हो उसमें एक ही के फंक्शन होते, ढेर सारे अलग अलग यूज़ नहीं करनी पड़ती हमें। तो इसका मतलब जब हम मल्टीपल हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वी स्टोर लाइब्रेरी फंक्शंस इन ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे विद द हेल्प ऑफ, बहुत सारी हेडर फाइल्स की मदद से हम जो लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते हैं उसे स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ करते हैं। मतलब जो जैसे कि यहाँ पर पेंट रखनी है वहाँ पे पेंट ही पेंट रहेंगी, जहाँ शर्ट रखनी है वहाँ शर्ट रहेंगी, सबका अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग सबको काम बटा हुआ है। तो जो हेडर फाइल है, स्टूडियो का काम है कि वो प्रिंट एफ जो प्रिंट एफ में फंक्शन क्या जो लिखा जाता है उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ का काम ये होता है। तो जो भी फंक्शन लिखा जाएगा तो स्टूडियो का काम है उस प्रिंट एफ और गेट ch को रन कराना, ठीक है। और कोनियो का है जो CLR SCR है और गेट CH है उसको कराना। प्रिंट एफ जो स्टूडियो डॉट एच है उसका क्या है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ और बहुत सारी हेडर फाइल्स का, तो सबका अपना अलग अलग काम बटा हुआ है, तो सब अपने अलग अलग काम से करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल हेडर फाइल्स की वजह से हमें बल्कि आसानी होती है बहुत काम करने में, कि अगर हमें प्रिंट एफ वाला यूज़ करना है तो इसका मतलब स्टूडियो वाला आप हेडर फाइल लगाइए। अब गेट CH भी आ रहा है आपके प्रोग्राम में, गेट CH वाला फंक्शन यूज़ करना है तो आप कोनियो लगाइए, और CLR SCR करना है तो कोनियो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं गेट CH की वजह से। तो इससे हमें बहुत आसानी होती है कि मल्टीपल हेडर फाइल्स हैं। नाउ कम टू वॉइड। हमने हैश इंक्लूड कोनियो लिख लिया, स्टूडियो लिख लिया, मतलब समझ लिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है, वॉइड एक कीवर्ड होता है जो वर्क करता है, दैट वर्क्स एज अ रिटर्न टाइप एंड स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न नथिंग। जो वर्क वॉइड कीवर्ड जो होता है उसका काम होता है रिटर्न टाइप वर्क, ये काम करता है रिटर्न टाइप के वर्क में, जैसे कि ये खाली देता है, कुछ भी नहीं देता, एंड स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न नथिंग, कि फंक्शन मुझको कुछ भी नहीं देगा। ये करता है कि फंक्शन कुछ भी नहीं देगा, और इसको हम ब्लैंक रिटर्न टाइप भी बोलते हैं। वॉइड एक कीवर्ड होता है, इसे हम कीवर्ड बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब खाली, जो रिटर्न करता है कुछ भी नहीं, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एंड स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न नथिंग, और ये जानता भी है फंक्शन मुझे कुछ देगा नहीं। सपोज इसका भी एग्जांपल बताते हैं कि इसका एग्जांपल जो होगा, जैसे कि हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हमारा बिल है 895 का, हमने 900 रुपये दे दिए, तो हम क्या करते हैं, 5 रुपये टिप दे देते हैं कि नहीं 5 रुपये आपकी टिप है वेटर को। तो क्या हुआ कि हमने दे दिया कि ये आपकी, ये हमें हमें कुछ मिला नहीं वापस लौट के। स्पेसिफाई दैट रिटर्न नथिंग, फंक्शन रिटर्न नथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिला, हमने दे दिया सब कुछ। तो वॉइड का काम भी सेम यही होता है। वॉइड एक कीवर्ड है जो कि वर्क, वॉइड का मतलब खाली, जो कि वर्क करता है, दैट वर्क्स एज अ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के तौर पर वर्क करता है ये, कि रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न कि मुझे रिटर्न करेगा, वर्क करता है कि मुझे रिटर्न करेगा, पर स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न नथिंग, और फंक्शन उसको कुछ भी नहीं देता, और उसको हम ब्लैंक रिटर्न टाइप भी बोलते हैं। नोट, ईच एंड एवरी फंक्शन डेफिनेटली हैज़ अ रिटर्न टाइप, हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप ज़रूर होता है, बस इस वॉइड का नहीं होता, बाकी हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप ज़रूर होता है। नाउ कम्स टू मेन। वॉइड के बाद हम लिखते हैं मेन, और ये ब्रेसेस लगाते हैं। मेन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब सबसे पहले जो फंक्शन यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मेन। जैसे वो था प्री डिफाइंड डायरेक्टिव, प्री डिफाइंड कमांड, वो थे प्री डिफाइंड, मतलब सबसे पहले जो
प्री सबसे पहले डिफाइन किए जाते हैं। तो मेन का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन यूज किया जा सकता है उसे बोलते हैं मेन, विच इज यूज टू स्टार्ट और एग्जीक्यूशन आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट और स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेन। मेन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो सबसे पहले फंक्शन यूज किया जाता है और इसी की वजह से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एग्जीक्यूट होता है। नोट, विदाउट मेन प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। आप मेन प्रोग्राम हटा देते हैं तो कंपाइल हो जाएगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल हो जाएगा, आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, रन जो होता है वो नहीं होगा और कंपाइल हो जाएगा। तो मेन की वजह से क्या होता है? हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप मेन हटा दोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन की वजह से क्या होता है? प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, मतलब स्टार्ट होता है मेन फंक्शन की वजह से। मेन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। अब आता है वॉइड मेन। हमारा कैसे बॉडी लिखी जाती है? वॉइड मेन लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मेन और एंडिंग ऑफ द लाइन। फिर आता है CLR SCR। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये कौन सी हेडर फाइल कंटेन करती है? CLR SCR एक फंक्शन होता है। ये कोनियो डॉट एच जो हेडर फाइल होती है, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। ये जो हेडर फाइल होती है ये इस CLR SCR को अपने अंदर रखती है, प्री डिफाइंड फंक्शन को। एंड इट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। और ये स्क्रीन को, जो आउटपुट स्क्रीन में हम कुछ भी जो पहले का लिखा होता है उसको क्लियर कर देती है। हम पहले कुछ भी लिखते हैं उसको इसका काम होता है पहले की हर चीज को मिटा देना और जो हमारा नया रिजल्ट होता है उसको स्क्रीन पे दिखाना। CLR SCR का मतलब ये होता है। और इसकी कौन सी हेडर फाइल लेती है? कोनियो। कोनियो इसकी हेडर फाइल है। और हर चीज के बाद हम सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि इट डिनोट्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और कंप्लीशन ऑफ द स्टेटमेंट, कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब जैसे कि जब स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो अगर हम सेमी कॉलन ना लगाएं तो वो उसको रीड कैसे करता है? वो उसको रीड ऐसे करता है, वो हट गया कि पूरी को एक साथ ले लेगा। जैसे कि आ गया, ये है। तो अगर हम यहाँ से सेमी कॉलन हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन हट जाएगा तो ये पूरा इसके साथ ही आ जाएगा, ये तो पूरा इसको एक साथ रीड करेगा। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये फंक्शन यहाँ पर एंड हो गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज किया CLR SCR के बाद, मतलब क्लियर स्क्रीन कर दो, फिर आप अगली लाइन पर आ जाओ। सेमी कॉलन मतलब यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। अब यूज होता है फिर प्रिंट एफ। नाउ प्रिंट एफ का मतलब जो होता है कि प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने प्रिंट एफ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था, यहाँ पर प्रिंट एफ की जो प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा जाता है वो लिखा जाता है डबल कोट्स में। और उसका काम होता है अपने अंदर डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखा गया उसे आउटपुट स्क्रीन पर शो करना। जैसे कि हम डबल कोट्स प्रिंट एफ लिखा हमने, प्रिंट एफ के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ लिखा, मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर हेलो, तो उस हेलो को वो आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे वो आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। प्रिंटफ का वो होता है। प्रिंटफ क्या होता है? ये भी एक फंक्शन होता है जो कौन लेता है, जो कौन सी हेडर फाइल लेती है? स्टूडियो डॉट एच। इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इट बिलोंग्स टू, ये किस हेडर फाइल को बिलोंग करती है? स्टूडियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल को बिलोंग करती है। इट इज़ यूज टू प्रिंट द कंटेंट ऑन द स्क्रीन विच इज़ इनक्लोज इन डबल कोट्स। ये उस कंटेंट को प्रिंट करती है स्क्रीन पे जो डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज होता है, डबल कोट्स के अंदर होता है जो, उसको प्रिंट करती है। अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उसमें लिखा आता है लाइन्स कंपाइल्ड 466, और जबकि हमारी लाइन होती हैं 5 या 6। ये क्यों होता है? जैसे कि ये लाइन कितनी है? 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि इनको तो रीड करेगा नहीं। और 6 लाइनें, और अभी आप इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो लाइन लिखी आती है 467। तो इतनी लाइन क्यों होती है? इतनी लाइन होती है इसकी वजह से, क्योंकि इतनी सारी जो हेडर फाइल्स हैं, ये जो मैथ डॉट एच है, ये इतनी बार वो रिपीट करती है बार बार, तो उसकी वजह से इतनी सारी हेडर फाइल, इतनी सारी लाइंस कंपाइल्ड होती हैं। स्टूडियो की वजह से इसके अंदर का जो फंक्शन होता है वो कंपाइल करता है फिर, तो उसकी वजह से लाइंस ज़्यादा हो जाती हैं, 467 हो जाती हैं उसकी वजह से। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा? आज हमने पढ़ा था प्रिंटफ फंक्शन तक। ये रहा प्रिंटफ फंक्शन तक, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्रिंटफ तक हमारा हो गया आज। और बहुत लोग पूछते हैं कि वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं आता? अगर वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन आ जाएगा तो ये क्या है? ये एक रिटर्न टाइप है, इसका काम होता है खाली।
अगर इसके बाद सेमीकोलन हो जाएगा तो ये तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर वर्ड मेन हमने यूज़ क्यों किया? तो वर्ड मेन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इट वर्क्स एज अ रिटर्न टाइप एंड स्पेसिफाई दैट फंक्शन रिटर्न नथिंग, और स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन मुझको कुछ भी नहीं देगा। होप आप सबके ये वाला लेक्चर समझ में आया हो, लेक्चर 3। तो thank you and subscribe my channel and be with me. Thank you so much. नेक्स्ट गेट CSS हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।